हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज चेक कर लेते हैं व्हाट आर द हिडन फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ योर पर्सन टूवर्ड्स यू। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके मन में हैं लेकिन आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। सो एज ऑलवेज यू विल फाइंड टू पाइल्स ऑन योर स्क्रीन। यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो, मेडिटेट एंड चूज अ पाइल विच इज कॉलिंग यू इंट्यूटिवली। आई सी यू एट योर रीडिंग। Okay, pile number one, think about your person. Let's see what are their hidden feelings for you. What are their hidden feelings and thoughts that this person is not able to express you, but अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है. Think about this person, pile number one. Okay, I'll take this ace of coins. Nice. Okay, five of wands. Could be a possibility that you are in a no contact situation, this person, or in the past you have tried a lot to make a conversation with this person, try to meet this person, but you had not received any thumbs up from this person's side. Okay, next we have 9 of coins. The Hangman. Okay, we have the Temperance. We have 5 of Swords. Okay, bottom of the deck we have 6 of Swords. Okay, point number one, why you are not getting any response from this person? Why this person just is ignoring you, or you are getting a mixed signals from this person? The reason is that this person is in a stuck situation. Okay, ये person बहुत लंबे time period से एक stuck situation में है, pile number one. And this person doesn't want any kind of a drama. किसी भी तरीके का ड्रामा ये पर्सन नहीं चाहते, किसी भी तरीके का एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते, अपने आप को कहीं प्रूफ नहीं करना चाहते, वल्नरेबिलिटी से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वीकनेस से बहुत ज़्यादा डरते हैं, इमोशंस को नहीं दिखाना चाहते. दिस इज़ द रीज़न कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं. दिस पर्सन इज़ जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड यू, बिकॉज सी रीडिंग ये नहीं थी कि वाई दिस पर्सन इज इग्नोरिंग यू. रीडिंग ये थी कि वट आर द हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन. बट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, वट आई एम गेटिंग हियर इज दैट यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, ओके, टू बिल्ड अ कॉन्वर्सेशन विद दिस पर्सन or to ask that everything is fine in their life. But no, this person is in a closed off completely. This person is in a isolation mode. This person is just focusing on the other parts of life, focusing on the practical things in life, and not giving any kind of energy to the emotional things, to the emotional stuff that I'm sensing here. Okay, if I talk about the feelings and emotions of this person, conflicted. See, with the 5 of wands card. So the feelings and thoughts of this person, what this person is hiding from you is that this person see you as a very desirable person. ये person आपको ऐसे देखते हैं, pile number 1, कि आप बहुत डिज़ायरेबल पर्सन हो. इस पर्सन की आप बिगेस्ट विश हो सकते हो. दिस पर्सन रियली वॉन्ट टू सी अ फुलफिलमेंट विद यू. दिस पर्सन रियली वॉन्ट टू यू इन देयर लाइफ. ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं. एज यू कैन सी विद दिस ब्यूटिफुल कार्ड, एज यू कैन सी हाउ द मैन इज सीइंग दिस बर्ड. एज आई डोंट नो वेदर यू आर सी इट कम्प्लीटली और नॉट, लेकिन उसकी आंखों में जो तुम्हें प्यार नज़र आ रहा है सेम चीज़ तुम्हारे पार्टनर की आंखों में तुम्हारे लिए यही प्यार है. आई डोंट नो वेदर आई कॉल इट पार्टनर और नॉट, बिकॉज आई डोंट नो किसका तुम ध्यान करके ये वीडियो देख रहे हो. बट ये जो भी पर्सन है, ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं. दिस पर्सन रियली appreciates you. This person really appreciates your beauty, your smile, the way you carry yourself. ये इस पर्सन को आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. सो दिस पर्सन इज जस्ट हाइडिंग दिस थिंग बिकॉज कन्फ्लिक्ट इज देयर. ओके, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन, यू आर अ वेरी चार्मिंग पर्सन. इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि यू आर आर्टिस्टिक, you are a dancer, or it could be a possibility that you are just learning dancing, you are learning kathak, guitarist, something related to art and craft, something related to artistic field. You are someone which is a magnet. You are someone who just attract people very instantly. So इस person को ऐसा लगता है, जो ये person hide करते हैं आपसे, पहली चीज़ तो ये है, you are extremely beautiful, you are extremely charming.
लविंग, ब्यूटीफुल, ठीक है। एक तो तुम ऐसे हो, दूसरा अब इनर कन्फ्लिक्ट इनके अंदर इस चीज़ को चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ये इनर कन्फ्लिक्ट इनको, ये किसी एक आधार पर नहीं पहुंच पाते, ये किसी एक निष्कर्ष पर, किसी एक तरीके के कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते तुम्हें लेकर, बिकॉज एज यू कैन सी दिस पर्सन फील्स दैट यू आर समवन हु इज़ वेरी प्रीशियस, यू आर समवन हु इज़ वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, एंड यू आर द वन जिसको कोई भी मिल जाएगा। ओके, यू विल गेट so many people easily, and this person is having this realization कि तुमको कुछ ऑफर करना चाहिए, तुमको कुछ ऑफर किया जा सकता है, तो ऐसा वैसा कुछ ऑफर नहीं किया जा सकता, तुमको कुछ सॉलिड ऑफर किया जा सकता है, समथिंग जिसमें कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो, जिसमें कुछ कमिटमेंट इन्वॉल्व हो, जिसमें कुछ मैरिज इन्वॉल्व हो, जिसमें कुछ स्टेबिलिटी हो, जहाँ पर तुम इनको ट्रस्ट कर सको। और ये नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको एडमायर तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको देना भी बहुत कुछ चाहते हैं, बट ये पर्सन एक कन्फ्लिक्ट में है, क्योंकि दिस पर्सन इज इन अ हैंग्ड मैन पोजीशन, दिस पर्सन इज इन अ पोजीशन वेयर दिस पर्सन इज इन अ स्टक एनर्जी फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको जो ये चीज़ें हाइड कर रहे हैं तुमसे वो यही है कि येस आई हैव दिस फीलिंग फॉर हर और फॉर हिम दैट he is a very genuine person or she is a very genuine person, very beautiful, very charming, but after realizing all these things, am I able to give her anything? Am I able to offer him anything? No. तो हैंगमैन की पोजीशन में है आपके पार्टनर, एंड समवेयर इस पर्सन को ऐसा भी लगता है ड्यू टू हिज ईगो और हर ईगो, पास्ट में ऐसा हो सकता है, मैंने आपको बिगनिंग में बोला कि यू हैव ट्राइड योर बेस्ट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन, बात की जाए, चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, पर ये इंसान उस एनर्जी में ही नहीं थे, एंड नाउ दिस पर्सन इज हैविंग दिस रियलाइजेशन कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया ड्यू टू माई प्राइड, ड्यू टू माई ईगो, and now this person is just trying to find a clarity in terms of you। ये जो चीज़ें तुमसे छुपाते हैं वो यही है कि you are very beautiful, you are very precious, yes I have something in my heart for you, but the thing is that मैं उन चीज़ों का क्या करूं, क्योंकि मैं कन्फ्लिक्ट्स में हूँ। ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स में है, एक हैंगमैन पोजीशन में है, ऑफ़र बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पास्ट में अपने ईगो की वजह से सारी चीज़ें ख़राब कर दी हैं, एंड नाउ दिस पर्सन रियली वांट टू बैलेंस दिस सिचुएशन। इनको डर लगता है आपका सामना करने से, आपके आगे आने से। सो दीज आर द थिंग्स दैट योर पार्टनर इज़ हाइडिंग फ्रॉम यू। पाइल नंबर 1, लेट मी चेक मोर, लेट मी चेक। ओके, सी द लवर्स कार्ड इज देयर। मैंने कहा ना फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सी वाओ, 10 ऑफ कप्स, यही चीज़ें छुपाते हैं ये पर्सन आपसे। अगर देखो मुझे ऐसा लग रहा है इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि इस पर्सन ने तुम्हें इतने ज़्यादा मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं पाइल नंबर 1 कि कई बार तुम्हें समझ में नहीं आता होगा कि ऐसा तो नहीं है जो मैं सोचता हूँ, ये सोचती हूँ सिर्फ मेरा वहम है, ऐसा है ही नहीं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, वहम नहीं है, सच है, बिकॉज फीलिंग्स हैं इस पर्सन की, डिज़ायर ये तुमको बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड विद द 10 ऑफ कप्स कार्ड, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक लाइफ में रहना, आपके साथ चाहते हैं शादी करना, to have children, to build a good life with you, to live peacefully with you, ये सब इस पर्सन का है इंटेंशन। लेकिन due to the lack of clarity, due to the indecisiveness, this person is not able to take any action towards you। so feelings हैं, उनको छुपा के रखते हैं, and उनका किसी भी तरीके से किसी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए हैं, किसी एक तरीके का डिसीजन नहीं ले पाए हैं, इसीलिए द हैंगमैन की पोजीशन में है ये पर्सन। सो दीज आर द हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, पाइल नंबर 1। सो दिस इज इट फॉर टुडे, पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 2, थिंक अबाउट योर पर्सन। लेट्स सी पाइल नंबर 2, आपके पर्सन की कौन सी हिडन फीलिंग्स हैं, कौन सी ऐसी सीक्रेसी उन्होंने आपसे रखी हुई है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो छुपा रहे हैं। द चैरियट, ओके, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, we have the wheel of fortune, okay, we have 6 of coins, we have page of swords, okay, what is the bottom of the deck? Bottom of the deck is knight of cups। pile number 2, what I'm sensing here is that with the Knight of Cups card, definitely इस person के मन में ऐसा intention है तुमको लेकर that this person really wants to come forward
offer you this cup, okay, offer you this cup, but the energy is very slow. At Knight is a card which is a very slow card, so energy बहुत slow है इस person की towards you, but yes, there is a intention, there is a feeling. The hidden feeling of this person is that yes, there is a desire of this person to come forward and to offer you something which is very stable. That is there some love, some apology. I'm also sensing that in the past you had an argument on something, or it could be a possibility a misunderstanding was there, जो इतनी ज़्यादा build हो गई है even currently कि इस person को ऐसा लगता है कि somewhere आप उनसे नाराज़ हो, आप इनसे किसी तरीके का एक अटेंशन इनको नहीं दे रहे हो, किसी एक तरीके की बात इनसे नहीं कर रहे हो, एंड इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू हैव बिल्ड अ वॉल्स कि ये पर्सन आ ही नहीं पाए. सो समवेयर ये पर्सन आपको एक अपॉलॉजी आपसे लेना चाहते हैं, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, कोई एक मैसेज आपको करना चाहते हैं. अगर बहुत टाइम से कम्युनिकेशन आपका बंद है, कोई नहीं कम्युनिकेशन हुआ है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द हिडन फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन टूवर्ड्स यू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो ये हाइड करके आपसे चलते हैं कि यू आर द पार्ट ऑफ देयर डेस्टिनी, आप उनकी डेस्टिनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो, कुछ ऐसा पार्ट हो जो उनके हाथ में नहीं है. मतलब आपसे रिलेटेड कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो वो चाह कर नहीं ले सकते, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि वो चाह कर भी आपको दूर भी नहीं कर सकते और आपकी तरफ आ भी नहीं सकते. दिस पर्सन इज समवन हु इज़ फीलिंग कि यू नो आपके आने से उनकी लाइफ में एक शिफ्ट हुआ है, उनके नेचर में एक शिफ्ट हुआ है. इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, डोंट टेक इट अदरवाइज, एज माई रीडिंग्स आर नॉट शुगर कोटेड. व्हाट आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रांगली वही मैं आपको बताती हूँ. तो करेंटली व्हाट आई एम फीलिंग हियर इज़ दैट इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी आप जिस पर्सन के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, जिस पर्सन के बारे में सोच कर जो रीडिंग के दौरान बार बार आपके माइंड में आ रहा है, जो पर्सन का नेम या पिक्चर, ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं पास्ट में जिनके बहुत सारे रिलेशनशिप रहे हो, प्ले बॉय काइंड ऑफ एनर्जी में जो इंसान रहते हैं, या एक ऐसी a woman who is not very serious with everyone, but who is just who is dating so many people, but not serious or not going to give commitment to anyone. Some sort of a energy that I am getting here. आपके पर्सन की पास्ट में ऐसी हो सकती है, बट आपसे मिलने के बाद इस पर्सन की लाइफ में एक शिफ्ट आया है, एक चेंज आया है, एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि समवेयर यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आप उसकी डेस्टिनी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हो, जो जिसने उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया. एक शिफ्ट इस पर्सन के अंदर आ गया है बाय यू, थ्रू योर पर्सनैलिटी. आपके आने से वो शिफ्ट आया है. समवेयर ये पर्सन एक वेटिंग टाइम पीरियड में भी है, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है. आना चाहते हैं, ऑफर कुछ करना चाहते हैं, कुछ एक अपॉलॉजी आपसे मांगना चाहते हैं, कुछ एक लाइट, एक हार्टफील्ड मैसेज आपको करना चाहते हैं, बट ही इज़ इन अ वेरी कंट्रोलिंग पोजिशन विद द चैरियट कार्ड इज देयर. दिस पर्सन इज समवन हु ऑलवेज वॉन्ट्स द की इन देयर हैंड्स, हु ऑलवेज वॉन्ट्स द की ऑफ दिस रिलेशनशिप इन देयर हैंड्स, who doesn't want to show their vulnerability, who doesn't want to show that okay, I am also dying, I am also feeling, I am also missing you. This person doesn't want to show this. तो ये हाइड क्या करके चल रहे हैं, ये हाइड ये करके चल रहे हैं कि दिस पर्सन really want to take any action, because the chariot card is also an action oriented card, ट्रैवलिंग कार्ड. दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू कम फॉरवर्ड, ट्रैवल करके आपको मिलना चाहते हैं. इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू बोथ आर लिविंग इन अ डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट. सम डिस्टेंसेस देयर दैट आई एम सीइंग हियर, बट ये पर्सन वेट कर रहे हैं, सिर्फ पेशेंस से काम ले रहे हैं. और ऐसा नहीं है कि तुमको ऐसा जो फील हो रहा है कि दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग मी अटेंशन और दिस पर्सन इज़ जस्ट इग्नोरिंग मी. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ये पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू टेक सम एक्शन टूवर्ड्स यू. कोई एक एक्शन लेना चाहते हैं. वाई? बिकॉज द लव इज़ देयर विद द किंग ऑफ कप्स कार्ड अगेन. ठीक है, विद द नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स. डेफिनेटली दिस पर्सन डू हैव दिस फीलिंग्स, एंड दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू गिव इक्वल गिव एंड टेक इन दिस रिलेशनशिप. अगर तुमको इनका बिहेवियर देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं, दिस पर्सन इज़ वेरी ईगोइस्टिक काइंड ऑफ अ पर्सन एंड जस्ट लिविंग इन आइसोलेशन, नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट taking any initiative, because this person needs some time. This person really wants to take any action, and I am seeing that वो जो जितना जल्दी एक एक्शन लेने की एनर्जी है, कंट्रोल कर चल रहे हैं उसको, बिकॉज पेज ऑफ स्वॉर्ड इज़ देयर. बिकॉज समवेयर ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि अगर वापस आए आप तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा. आप रिस्पॉन्सिबल होगे, आप हाँ में जवाब दोगे, आप ना में जवाब दोगे, आप क्या कहोगे, आप किस तरीके से एक्ट
करोगे. सो दिस पर्सन इज़ वेरी कैलकुलेटिव करेंटली, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहे हैं आपको लेकर. यही एक फीलिंग्स ऐसी हैं जो ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ने आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को रियलाइज़ किया है इस डिस्टेंस में आपके बिना, कि व्हाट यू आर फॉर देम एंड आप उनके लिए कितने ज़्यादा वैल्यूबल हो, ये पर्सन अभी रियलाइज़ कर रहे हैं करेंटली. सो दीज आर द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ दिस पर्सन. लेट मी चेक मोर. See, we have 10 of Wands and 3 of Cups. As you can see, both are the opposite energy. जो इन्होंने आपके साथ किया है, जो ये डिस्टेंस है, जो भी आपका बिहेवियर अभी हो रहा है, इस पर्सन को नहीं पता, बिकॉज दैट इज आई एम स्ट्रांगली गेटिंग हियर विद द चैरियट कार्ड. ओके, एंड अगेन द नाइट ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक इज देयर. डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, नो कॉन्टैक्ट है. कॉन्टैक्ट है तो बहुत कम है. इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि अब तुमने सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लगाना, यू आर अ पर्सन कि जिसको जैसा फील होता है बहुत ब्लंटली अपनी चीज़ें बोल देता है, ये बोल देती है. इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कोई स्टेटस लगाकर, कोई इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाकर. सो यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी एक्सप्रेसिव. ओके, जो भी तुम्हारे मन में होता है आप ऐसे शो कर देते हो. एंड बट अब तुम्हारी एनर्जी में एक शिफ्ट ये आ गया है कि यू आर नॉट रेडी टू शो एनी थिंग, एनी इमोशन, एनी फीलिंग, एनी थॉट, कुछ नहीं दिखाना. अब तुम्हारा मन है इस पर्सन को, जो भी मैं फील कर रहा हूँ, जो भी मैं फील कर रही हूँ मेरे मन में ही है. आई डोंट वॉन्ट टू शो एनी थिंग टू दिस पर्सन. That is something which is affecting this person so much. This person is not able to understand कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है. This person is not able to understand कि तुम क्या कर रहे हो लाइफ में, कैसा कर रहे हो, what is the best time to come forward, are you in a good mood, are you in a bad mood, what's happening in your life. So you just cut the जो एक पिक्चर चलती है स्टेटस के थ्रू अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताने की, तुमने वो ख़त्म कर दिया है. एंड इट इज़ समथिंग, एज यू कैन सी, स्कल इज here and the tree is growing from that skull. That means somewhere वो चीज़ें इस पर्सन को इतना ज़्यादा हॉन्ट कर रही हैं कि this person is overthinking a lot, and it could be a possibility that this person is फीलिंग दैट कि क्या हो सकता है. मीन्स दिस पर्सन, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर जो चेंज आया है, तुम्हारे अंदर जो शिफ्ट आया है, उस शिफ्ट की वजह से अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं. एंड दिस पर्सन इज समवेयर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू. ये जो तुमने अपने आप को पुल बैक किया है, ये जो एक अपनी एनर्जी को पीछे खींचा है कि नहीं, आई डोंट वांट टू शो एनीथिंग व्हाट आई हैव इनसाइड माय हार्ट, आई डोंट वांट टू एग्जिबिट इट. तो उस चीज़ से एक शिफ्ट ऐसा हुआ है कि ये पर्सन परेशान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कुछ अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं क्या चल रहा है. एंड द बेस्ट कार्ड इज दैट 3 of Cups. So this person really wants a reunion with you. This person really wants to have a friendly conversation with you. This person really wants to take out for a date or a coffee, just to have a good time with you, so that this person will explain himself or herself, want to know that how you are or what you have inside in your heart for them. So these are the hidden emotions and hidden feelings that your person is hiding from you. So this is it, pile number 2. So this is it for today. Now I will see you in next video. Take care and goodbye.